কি সাইডটাকে দেবো না কাম वंदे लोकतिलकं सातद्वार्ता विभूषणं अमर कृत्य शरणं प्रभुं लोकजीवनं पुराणे प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरक्षी श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधानाचार्य चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अभिनंदा एवं ठाकुर परिवार और समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक गौरांग द्विवेदी दास प्रतिनिधि कटकरू आगत निरादेशर दादा अमर एवं उपस्थित समस्त भूतपांजाधारी कर्मी मंडली समस्त को मोर आभूषण प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिला समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जनाए। आज हूँ मोर दादा श्री गोलक चंद्र बारिकर प्रथम श्राद्ध वार्षिक से उपलक्षे ये सत्संग आज प्रदान करिसेंती तांकर पुत्र पप्पू दीपू लिपू एवं सपरिवार तांकर से विधेयी आत्मांकर सद्गति पाई आज सत्संग दादांकर ये प्रथम श्राद्धवार्षिक बाल्य जीवन अनेक स्मृति जाओ मनीष जन्म नेले मृत्यु तो हुए आम समस्ते जानिछु जन्मर चिरंतन सत्य हूँ मृत्यु किंतु ठाकुर आगु को पादे जाई कहते द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ द डेथ इज द लाइफ। मनीष मले पुणी थे जन्म नहीं ये जन्म जन्मांतर चक्र भितर मनीष ये धराधाम को बार बार से आत्मार विभिन्न शरीर दे पुणी से ये धरापृष्ठ को आसे तेणु जीवन से अवधि से समय तक केमती परम पिता चरण में बीतई दि जाए पारे जीवन को किभली धर्म मार्गे बीतई देवा पारे से मनीष जीवन में गुरुंर आवश्यक पड़े। तेणु मनीष जीवन में गुरु नथिले मनीषटा दिगहरा हो जाए एवं मनीष से बुद्धि प्रवृत्तिर छांदरे पड़ी छटपट ही जीवनटा को लहुलुहान कर दिए दुखरे जीवनटा अतिबाहित हुए। से दिन महात्मा गांधी जेतबेले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखक से दिन आसी तांकर जो ग्राम्य जीवन विकास धारा तांको मन भितर उंकी मारुला स्वप्नर भारत गढ़िबार जो चिंता थिला से सत्संगर आश्रम को जेतबेले बुलिकी अवलोकन करथिले से विभोर ही पड़े ठाकुरंकर से आयोजन भितर से आश्रम भितर थिला समस्त कल कारखाना सबकिछि मेडिसिन फैक्ट्री ठू आरंभ कर सबकिछि अत्याधुनिक जिनस से तैयारी करथिले। ठाकुर एमती गेरुआ पिंधा सन्यासी नथिले से सांसारिक सन्यासी थिले। मनीष जीवन ठाकुर से भाववाणी कहते आम शुद्धात्मा चाहिए आम
ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଇ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସତି କରୁଥିବା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନରେ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କିଭଳି ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଜଣେ ବାବା ହେଇଥିବେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ଜଣେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସାଂସାରିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମର ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅନେକ ଧର୍ମର କଥା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଭାଷା ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବଞ୍ଚାର ବଢ଼ାର ମର୍ମ ଯାହା ଜାଣିଥା ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେ ମଣିଷର ବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଗମନ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ନର ରୂପ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଗୁରୁ ଆଜି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଗୁରୁ ଜେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ, ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ତିନି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ତାକାଇ ବୋଲେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଜିନି, ଯିଏ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁରୁ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅବଲୋକନ କରାଯାଏ ତେବେ ବୁଝା ପଡ଼େ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼େ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତର ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 72 ଥର ଭାବ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ 72 ଥର ସେ ଭାବ ସମାଧି ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାବ ସମାଧି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମୃତବତ ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ କୋଇଲା ଜଳନ୍ତା କୋଇଲା ଆଣି ରଖିଛି, କଣ୍ଟା ପିଟିଛି, ଅନେକ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତବତ ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ନଥିଲେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ସେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗତି କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ ଅମୃତର ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ସେ ଅମୃତର ବାଣୀ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେଦିନ ତାର ଭାଷା କି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଭାଷାର ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଭାଷାରେ ସେଇ ଭାଷା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାଷାରେ ନିଗରିତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିଞ୍ଚିତ ତାକୁ ସାଉଁଟା ଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିରେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ମଣିଷ ଜଣେ ମାନେ ବିନା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ସେ କଥା କହିପାରେ? ତାଙ୍କ ଅମୃତର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଦିନ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଠି ମନେ ପଡ଼େ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୀତା ମନେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହଁରୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାବ ସମାଧି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଭାବ ସମାଧି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ସେ ଭାବ ସମାଧି ଠାକୁର ମନେ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ଥିଲା
जो अलौकिकता को बुझा आम मान साधारण मनीष पक्षे असंभव न था कारण ताक भितर से दिव्यतर एत परिभाषा थिला ठाकुर जन्म जेतବେଳେ जना पड़ीला एवं ठाकुर कहते मु जो जन्म नहीं से अनेक ग्रह ग्रहादि नक्षत्र कुंज धरापृष्ठ को आसी अनेक देवादेवी मत बारण करुले धरापृष्ठ को आसवाई किंतु मु निश्चित आसबार माने अचानक भाव में पृथ्वी को आसवा पड़ता ठाकुर से माँ चरण कोल जो धारण कर आसी जो ठाकुर जो जन्म नहीं से अलौकिकता एमती उठी जे पावना नदी जो बांग्लादेश रे जो पावना नदी रे धीवर माने माछ धरुथिले हठात किना चकित होई उठिथिले जे शिवचंद्र चक्रवर्ती जी ठाकुर बापा थिले तांको घरे बोधे निया लागि जाइछि एवं अग्निकुंड नियार झास उठिथिला उपरकू एवं से दौड़ी जाइथिले निया लागि जाइछि बोधे लिभेया पाई एवं देखिला बेलकू खिली हसुथिले श्री ठाकुर एवं ठाकुर जो जन्म नहीं साधारण छुआटा जन्म हेले कांदे ठाकुर किंतु हसुथिले खिली हेई एवं तांको मुंडरे साधारण छुआटा जन्म होला बेले ता मुंडरे चुटी थाए किंतु ठाकुरंकर भितर अनेक अलौकिकता थिला एवं ठाकुरंकर भितर से दिव्यता को जदि अनुभव करा जाए आम साधारणतः भितर आमे देखा जाऊ जे मो शरीर जदि वेदना हुई मो पेट दर्द हेले मते अनुभव हुए एवं मोर हाथ दर्द हेले मुझे अनुभव करे मत मुंड व्यथा हेले मु अनुभव करि पारे कारण मोर निजर व्यक्तिगत चेतना रे मु जीवित अछि मो पाखरे से पंच इंद्रियर भाव अछि मु से भाव द्वारा निजको जानि पारे अन्यर वेदना अन्यर दुख को मु जानि पारे ना मु अनुभव करि पारे मो स्त्री रो वेदना हेले ता गोड़ पेन कले मु जानि पारे मते कष्ट हुए मो गोड़ जदि दर्द हेई थांता ताले मु एति कष्ट पाई थांती कारण मु मो निज चेतना भितर सीमित किंतु ठाकुर पाखे विश्व चेतना थिला ये अचराचर विश्वर समस्त विश्व ब्रह्मांडर समस्त दुख को से निज शरीर में अनुभव करें से दिन ठाकुर संध्या समय पावना नदी गाधे की फेरुंट सांगे आसुंच प्रफुल्लदा एवं ठाकुर कांधे ओदा गामुछाटा पकईकि आसुंच देखुं गाईटा पघारे बंधा गाईटा पावना नदी कूल भितर को पड़ जा मृत्युर माने मृत्युर भय आर्तचित्कार करुच्ची गाईटा ता बेकरे पघाटा फसी जाइए तार बेकरे एवं सेतले प्रफुल्लदा को श्री ठाकुर कहते से पघाटा को काटिदे रे पघाटा को जो काटी दि जाइए एवं गाईटा बंची जाइए एवं प्रफुल्लदा ठाकुर सहित गाधेक आसुंच जो गामुछा काढ़ी दौरान जो ठाकुर बेकरू से बेकरे गाईर जो जगार पघा लगिकी रक्त लहुलुहान हो जाइए ठाकुर बेकरे से पघार चिन्ह ठाकुर बेकरे से लहुलुहान हो जाइए बेक ये हूँ श्री ठाकुर विश्व चेतना एवं ठाकुर जो बाल्य अवस्था से बाड़ी में खेलुंट हठात किना गोटे पक्षी धरुवा बणिकटे गोटे बणिक गछरे बसी पक्षी को जो सरबित कर तार जंत्रणा को ठाकुर सही पारना गोड़ी जाऊँच माटी उपरे से जंत्रणा को अनुभव कर पारना ठाकुर जाइछन्ति कलिकता से दिन एवं जड़े कलिकतार अंतेवासी पाखे ठाकुर से दिन प्रसाद ग्रहण करुँच बाल्य अवस्थार समय ठाकुर पाखे जड़े भक्त बसिकी से दिन प्रसाद ग्रहण करुच्ची कहूँ तार दुखर कथा ठाकुर कहूँ मोर अंटार एत जंत्रणा हुए मु बसी पारे ना एवं अंटार एत जंत्रणा हुए मु ठिया हो पारे ना यही कथा कहूँ अनेक कष्ट से बसिकी से खाऊँ ठाकुर पाखे जिते देखा जाइए से खाई सारा पर से आराम से उठिकी चली जाऊँगी तार किसी जंत्रणा ना कि ठाकुर उठी पारना अंटार जंत्रणा ये हूँ श्री ठाकुर ये विश्व चेतनार सबकिछि भितर समाहित से ठाकुर कहते द कॉल ऑफ योर साउंड रीचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड पुणी ठाकुर कहते विश्व दुनियाटा हूँ शब्दर घनायित रूप से शब्दर प्रतिच्छबि नहीं कि ठाकुर आसी स्पंदन यही शब्दर स्पंदन नहीं आसी नाम नहीं आसी सिद्ध गुरु ताकाई बोले मंत्र प्रतीक तीन मंत्र हूँ जहाँ मनीष को तारण कर पारे मनीषर मन को रक्षा कर पारे यही मन को शांत करके रखिपारे मनीष को निजर प्रवृत्ति को नियंत्रण कर साहाय्य करें से हूँ मंत्र एवं से मंत्र प्रतीक धरी प्रतीक हूँ श्री ठाकुर ठाकुर हूँ नाम एवं नामीर प्रतीक तेणु जो मन पकाए मनीष जीवन अनेक दुख यातना को दूर करे ये हूँ श्री ठाकुर से मोर मन पड़े लाल बहादुर शास्त्री मृत्युर कथा तास्केंट चुक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री राति 2 बजे
देहांत हो जाइछि मु टिके कहि रखे लाल बहादुर शास्त्री शास्त्रीकर ठाकुरଙ୍କର पांजाधारी कर्मी थिले एवं ठाकुर तांको गोटे दंड देइथिले एवं ठाकुर तांको कहिथिले जेउठिके तुमे गले भी ए दंडटाको तुमे नेकी जिवो जेतले तास्केंट चुक्ति को सेन लाल बहादुर शास्त्री जाउछथि एवं तांको स्त्री दौड़ी आनी कि देउछथि सेही दंडटाको ठाकुर लाल बहादुर शास्त्री कहउछथि फरेन जीवित आउ दंडटा दरकार नाही एवं चली जाइछथि सेन लाल बहादुर शास्त्री राति 2 बजे तांकर सेही ग्यासरु माने बाष्परुद होई से कमला रे मृत्यु हो जाइछि सेति जेतले तास्केंट राति 2 एठी भारत रे दिन 12 बाजिछि ठाकुर 12 बजे बसिछन्ति आश्रम रे एवं हठात किना ठाकुर से दिन स्तंभित होई कहि उठुछन्ति जे शास्त्री जी चले गए अन्य माने बुझिबा असंभव होइछि से दिन कारण ठाकुर कहउथिले द कॉल ऑफ योर साउंड रिचेस टू मी बिकॉज़ आई एम द साउंड से उधर शब्दर घनायित रूप तेणु लाल बहादुर शास्त्री से चित्कार से आत्म चित्कार से मुहूर्त हयतो से ठाकुर को मन पकई से मुहूर्त ठाकुर से दिन 12 बजे कहते शास्त्री जी चले गए एवं संध्या समय न्यूज रे डिक्लेयर होती शास्त्री जी देहांत हो जाइए ये होचंदी श्री श्री ठाकुर ठाकुर से दिन शोइचंदी खट उपरे नफर घोष ठाकुर को थापुड़े दौरान शोई देउछंती हठात किना ठाकुर उठी पड़ुछंती बिछड़ा ऊपर एवं छिड़ा हेकी खट तले ठाकुर कहउछंती आमी अछि एवं तापरे कहउछंती अटलांटिक महासागर एक विराट जहाज से डूबी जाउची ताको रक्षा करिया पई ठाकुर तार विधान से भी पहुंचैछनी एवं तार परदिन न्यूज रे जणा पड़ीची से जहाज ता दुर्घटनाग्रस्त रहिची ये होचंती श्री श्री ठाकुर से ठाकुर को आम गुरु रूप में पाइछु एवं जीवन को शांति स्वस्तिर जीवन को बितेबार धारा आम देइछन्ति जजन जाजन इष्टवती स्वस्ति सदाचार जो पंच धारा देइछन्ति एवं इष्टवतीर विधान कर देइछन्ति जो गुरुकुलर परंपरा ये आर्य संस्कृति रे थिला जो गुरुकुलर परंपरा नै कि समाज आज गड़ी उठी कि आज एते उन्नत स्तर रे पहुंची गुरुकुल रे जतले शिष्यटे जदि गुरुकुल आश्रम रे रहउथला से जाईकी जतले भिक्षा करी जहा किछ अर्थ कलेक्शन करे जहा किछ भिक्षा करी उपार्जन करे सब किछ से गुरु को दे दिए गुरु को दया से बंचे आज किंतु ठाकुर आछन्ति इष्टवती आमे किछि किछि ठाकुर को अर्थ दबा को पड़े से अर्थ नै आम जीवन कर्मफल को श्री ठाकुर नै जाती द्वापर युग रे श्री कृष्ण आसीथिले चारि जनकर कर्मफल को से ग्रहण करिथिले से थिले अर्जुन से थिले कर्ण से थिले विरासेन से थिले बर्बरी चारि जनकर कर्मफल ग्रहण करिथिले किंतु कली युग रे श्री ठाकुर आछन्ति समस्तकर कर्मफल को ग्रहण करिया पई ए इष्टवृत्ति माध्यम रे से होचति श्री ठाकुर सेही पुरुषोत्तम विवर्तित पुरुष विवर्तन परम विवर्तित पुरुष श्री ठाकुर आमे ताको जीवन रे पाइछे तांकर से विधान को जदि आमे माने कि चढ़ीबा जीवन रे शांति रे स्वस्ति रे जीवनटा को अतिबाहित करि परिबा तेणु समय तो हो जाइछि आम संगे अछंती आमर दादा सप्रतिनिधि से आलोचना को बढ़ेबे मु आ बेसी समय नौनी समस्तंकर शांति स्वस्ति पाई परम पिता के चरण रे प्रार्थना करी मोर वक्तव्य को विराम दउछि आ समस्त वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम।